کیا غریب کا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اس ملک پاکستان میں؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس کارساز واقعے کی جس میں ایک دفعہ پھر مجھے لگتا ہے دولت جیت جائے گی، دولت کا استعمال اور دولت کا نشہ شاید جیت جائے گا، اور دولت کے نشے میں ایک خاتون، ایک امیر زادی نے 2 قیمتی جانیں لے لی ہے۔ جہاں پر امیریت کی بات آتی ہے وہاں پر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قانون بھی بک جاتا ہے، اور قانون تو ویسے ہی اندھا ہے۔ کیونکہ لڑکی جو ہے بہت ہریس مینٹلی طور پہ ایک تو صحیح نہیں تھی، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے پبلک کی طرف سے پریشر آ رہا تھا، تو سیف سائڈ کے لیے جو ہے ہم نے اس کو موبائل کے اندر شفٹ کیا اور وہاں سے ہم نے کھانے کے اوپر شفٹ کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس 22 سالہ لڑکی اور 64 سالہ باپ کی، عمران عارف کی، جو کہ کراچی میں پاپڑ بیچتا تھا، کہ دولت کے نشے میں چور خاتون نتاشا دانش نے مار دیا ہے۔ ناظرین، مارنا کیا ہے کہ بھی کیڑے مکوڑوں کی بھی کوئی اوقات اور اوقت ہوئی ہے۔ وکیل کہتے ہیں جی نتاشا ذہنی مریضہ ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے نتاشا ذہنی مریضہ ہے۔ آج خاتون کا پہلا ریمانڈ تھا۔ خاتون کو پیش اس لیے نہیں کیا کہ وہ جناح ہاسپٹل سائیکیٹرک وارڈ میں ایڈمٹ ہے، وہ ایک سائیکوسس سے گزر رہی ہے، شی از انیبل ٹو اپیئر بیفور دا کورٹ۔ ہم نے عدالت کو بتایا کہ جناب آپ یہ بیلیبل آفینسز ہیں، اس کے اندر سیکشن 84 کے تحت وہ انساؤنڈ مائنڈ عورت ہے، اس کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کی جائے تاکہ جو بھی ریکوائرڈ شورٹی ہم سبمٹ کریں۔ دیکھیے اس کے پاس یو کے ڈرائیونگ لائسنس ہے وچ از اے ویلڈ لائسنس، اور اگر آپ کے پاس امریکہ، لندن، کسی کا انٹرنیشنل کسی کا لوکل لائسنس ہوتا ہے اس کنٹری کا، تو یو کین ڈرائیو اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ اس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے، سو دیئر فور پاکستانی لائسنس از ناٹ ریکوائرڈ۔ میرا سوال ہے کہ اگر وہ ذہنی مریضہ ہے، ذہنی طور پہ بیمار تھی، تو پھر اس کو ڈرائیونگ لائسنس یو کے جیسے ملک نے اس کو لائسنس کیوں دے دیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر نتاشا دانش واقعی ذہنی بیمار تھی یا بیمار ہے تو وہ پھر اپنے ایک میٹرو پارک کمپنی جو ہے اس کے بورڈ کے ممبر کیوں ہیں، اور ان کے بورڈ ڈائریکٹرز کی جو میٹنگ ہوتی ہے تو اس کو وہ اٹینڈ بھی کرتی ہیں۔ میں لیکن اپنی اعلیٰ عدلیہ سے ضرور اپیل کروں گا کہ خدارا آپ تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ تو عدل اور انصاف کے علمدار ہے، خدارا اس فیصلے میں کم از کم ایسا فیصلہ دیجیے گا تفتیش جو آگے بڑھے گی جس سے 25 کروڑ عوام میں سے ان غریبوں کا حوصلہ ضرور بڑھے، ان کی داد رسی ضرور ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے جس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میاں، پروگرام مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کے ایک نئی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، غریب کے خون کی قیمت اس دفعہ کیا ہوگی؟ کیا غریب کا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اس ملک پاکستان میں؟ حضرت علی کا قول ہے کہ معاشرہ ظلم کی حکومت کو قائم تو رکھ سکتا ہے مگر نا انصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور تم سے پہلی وہ قومیں تباہ ہو گئی جنہوں نے آپس میں انصاف نہیں کیا۔ جی ہاں، میں آج ایک اور واقعہ کے اوپر آواز اٹھانے لگا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا ولاگ اور آپ میرے ساتھ میری آواز میں آواز ملا کر اس غریب کی آواز بنیں گے جس کی آواز سننے والا اور جس کی آواز اٹھانے والا شاید کوئی ملک پاکستان میں نہیں ہے۔ جی ہاں، جہاں پر امیریت کی بات آتی ہے وہاں پر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قانون بھی بک جاتا ہے، اور قانون تو ویسے ہی اندھا ہے۔ ناظرین، جی ہاں، میں اسی واقعے کی بات کر رہا ہوں جو کہ 19 اگست کو کراچی کارساز میں ہوا، مگر شاید غریب
गरीब तो है, लेकिन गरीब को कोई अडॉप्ट करने वाला, गरीब को कोई तस्लीम करने वाला, गरीब के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस कारसाज वाक़े की जिसमें एक दफ़ा फिर मुझे लगता है दौलत जीत जाएगी, दौलत का इस्तेमाल और दौलत का नशा शायद जीत जाएगा। और दौलत के नशे में एक खातून, एक अमीरज़ादी ने 2 कीमती जानें ले ली है, 2 कीमती जानें, और उसके साथ 4 से 5 लोग ज़ख्मी हालत में, इंतहाई तशवीश की हालत में अभी तक हॉस्पिटल में दाखिल है। वाक़या कुछ यूँ हैं, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सुना होगा, लेकिन उसको भी आवाज़ को बैठाने की कोशिश की जा रही है। यकीन मानिए इस दफ़ा दिल जो है ना बहुत ही गमगीन है कि मुल्क पाकिस्तान में गरीब के खून की कोई वक़्त नहीं रही। मेरे समेत बहुत से मेरे दोस्त इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी आवाज़ उठाइए। मेरे दिल ने चाहा, बाज़ दफ़ा हमारे पर बहुत सारी सोशल ज़िम्मेदारी आयद होती है। मैं समझता हूँ कि मेरी जो प्रोफेशन है उसके ये तकाज़ा है कि मैं हक़ की बात करूँ आपके सामने। कोई तो हो जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। जी हाँ, आपको याद है, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, चंद रोज़ पहले आपने टेलीविज़न पर भी देखा होगा, नताशा दानिश नामी एक खातून जो कि दिन दिहाड़े प्राडो के ऊपर एक नशे में धुत, यकीनन वो नशे में धुत थी। एक ज़िम्मेदार शहरी या एक अक्लमंद शहरी से इस तरह की हरकत बेहद नहीं हो सकती। उसने 22 साला लड़की को उसके 64 साला बाप के साथ, जो कि दोनों ही अपनी फैमिली के वाहिद कफील थे, उन दोनों को कुचल के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस 22 साला लड़की और 64 साला बाप की, इमरान आरिफ की, जो कि कराची में पापड़ बेचता था। तीन पहियों वाली रेडी जो होती है ना, उस पर नाजरीन वो पापड़ रख के डिफरेंट मार्केट्स में सप्लाई करता था और अपने दोनों बेटियों को पढ़ाया, उसने लिखाया और इस काबिल किया कि वो सोसाइटी में मूव कर सके और हम इज़्ज़त की रोटी कमा सके। एक बेटी को उसने ब्याह दिया और दूसरी बेटी जो कि उसके साथ अभी पढ़ भी रही थी MBA में और साथ जॉब भी कर रही थी। दोनों को इस नागहानी मौत और इस गरूर के दौलत के नशे में चूर खातून नताशा दानिश ने मार दिया है। नाज़रीन, मारना क्या है, कि भी कीड़े मकोड़ों की भी कोई औकात और उकत हुई है, मार दिया गया, हो गया। सिस्टम बाद में बचाने के लिए किसको, गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए यकजा नहीं होता। मुल्क पाकिस्तान बड़ा अफसोस के साथ, दुखी दिल के साथ कहना पड़ रहा है, पूरा सिस्टम हमेशा की तरह ताकतवर को बचाने के लिए, पैसे वाले को बचाने के लिए, दौलतमंद को बचाने के लिए इकट्ठा हो जाता है। जी हाँ, नताशा दानिश जो है वो एक बहुत ही अमीरज़ादी है और किसकी मिसेस है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, गुल अहमद एनर्जी के चेयरमैन दानिश साहब की वो मिसेस हैं और इनके और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। मेन IP जो एनर्जी का प्रोजेक्ट है वो गुल अहमद एनर्जी के नाम से वो काम करते हैं। और नताशा के ऊपर हमने थोड़ी सी तहकीक की, जिसको ये आजकल सिस्टम साबित करने की कोशिश कर रहा है वो एक पागल थी, या वो एक ज़हनी मरीज़ा है, या वो ज़हनी तौर पर बीमार है। मेरा सवाल है कि अगर वो ज़हनी मरीज़ा है, ज़हनी तौर पर बीमार थी, तो फिर उसको ड्राइविंग लाइसेंस UK जैसे मुल्क ने उसको लाइसेंस क्यों दे दिया? सोचने की बात है। अगर नताशा दानिश वाकई ज़हनी बीमार थी या बीमार है, तो वो फिर अपने एक मेट्रो पार्क कंपनी जो है उसके बोर्ड के मेंबर क्यों हैं, और उनके बोर्ड डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है तो उसको वो अटेंड भी करती हैं और बड़ी एक्टिव वो फाल यानी कि बिजनेसमैन भी है। लेकिन सिस्टम वही बात हमेशा गरीब की आवाज़ को दबाने के लिए है और अमीरों को सपोर्ट करने के लिए है। काश मेरे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा ना होता। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक वाक़या रूनमा हुआ कारसाज के इस तारीख़ी मुकाम के ऊपर कि एक खातून ने, जिसकी बहुत सारी CCTV वीडियोज़ भी अब आ चुकी हुई हैं, एक नहीं काफ़ी वीडियोज़ आ चुकी है, जिसमें साफ बरमला देखा जा सकता है कि उसमें एक शराब के नशे में लेडीज़ ने
ये दो कीमती जानों को, बाप और बेटी को कुचल दिया, बल्कि उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए और भी 4 यानी कि लोगों को उसने ज़ख्मी किया और एक होंडा सिविक को भी हिट किया। उसके बाद उसकी अपनी भी गाड़ी उलट गई, क्योंकि उसकी गाड़ी काफ़ी कीमती थी, बड़ी थी, प्राडो थी, उसमें एयर बैग्स थे जिसकी वजह से उसको खराज तक ना आई। उसके बाद बहुत सारे लोग उसको तरफ गुस्से की हालत में मारने के लिए, यकीनन अगर पुलिस वहाँ पर ना पहुँचती तो शायद ये वाक़या हमेशा की तरह किसी और तरफ चल पड़ता, लेकिन पुलिस ने अपना फ़र्ज़ अदा किया कि एक अमीर को किस तरह से बचाना है, मैं ये कहूँगा वर्ड करके। और उसके बाद जिस तरह से उसको थाने में प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह पूरा सिस्टम उसको यानी कि बचाने के लिए लग गया, ये हमारे लिए कोई नई बात ना, ये हैरान कुल बात नहीं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस दफ़ा ये जो 2 मौत हुई है, हम इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर और सोशल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी में इसकी ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, ताकि आइंदा इस तरह कोई अमीर अपने पैसे के घमंड में किसी गरीब की जान ना ले सके। नाज़रीन, जबकि तिब्बी मायने में आ चुका है, यानी कि वही वाली बात कि अमीर सिस्टम को सपोर्ट करता है, अमीरियत को पाकिस्तान में इनके नताशा दानिश नशे में नहीं थी और तफ्तीशी का मुआयना भी हो चुका है, जिस्मानी रिमांड पर उसको जेल भी भिजवा दिया गया है। अच्छा, ये सब कुछ इतना जल्दी और आनन फानन हो गया, जबकि कोई गरीब इसी जगह इसी स्टेज पर होता तो शायद तफ्तीशी साहब अभी वो घर से ही ना आते, यानी मुकदमा दर्ज करने के लिए या इसकी पैरवी करने के लिए या इसकी तशवीश के लिए। लेकिन ये इतना जल्द सब कुछ किया जा रहा है कि यकीनन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द इसका फ़ैसला भी आ जाएगा। मैं अरबाब इख्तियार से तो अपील नहीं करूँगा इस सिलसिले में, क्योंकि वो मेरा अपील करना शायद इतना कारआमद साबित ना हो। मैं लेकिन अपनी आला अदलिया से ज़रूर अपील करूँगा कि खुदारा, आप तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बैठे हैं, आप तो अदल और इंसाफ के अलमदार है। खुदारा, इस फैसले में कम से कम ऐसा फ़ैसला दीजिएगा, तफ्तीश जो आगे बढ़ेगी, जिससे 25 करोड़ अवाम में से उन गरीबों का हौसला ज़रूर बढ़े, उनकी दाद रसी ज़रूर हो कि उनको पता चले कि कोई ऐसा फ़ैसला हुआ है जिसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया गया है। वो बाप बेटी मन्नो मिट्टी तले दब चुके, उसके ख्वाब, उस बाप के, उस बेटी के ख्वाब, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा अब कि आगे क्या होने वाला है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अब बात किस तरफ जाएगी। अब बात जाएगी दीद की तरफ, सुलह की तरफ, सफाई की तरफ कि मरने वाले तो जनाब मर गए हैं, अब क्या हो सकता है, आए सुलह की तरफ बढ़ते हैं। आए ये दीद का मामला है, ये आप हमसे रकम दे लें, आए हम आपको ऑफ़र करते हैं। गरीब फिर अपनी इज़्ज़त के हाथों बिक जाएगा और अमीर अपनी अमीरियत के हाथों फिर भी ऊपर रहेगा, हमेशा की तरह जो मेरे मुल्क पाकिस्तान में होता आया है। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत सारे इसमें हक़ाइक़ और बहुत सारे इसमें यानी कि मैं समझता हूँ तफ्तीश में बहुत सारी चीज़ें होने वाली बाकी हैं। हम और ये सिविल सोसाइटी अगर यूँ ही आवाज़ उठाएगी तो शायद इस केस का नतीजा कुछ कदर मुख्तलिफ होगा। सिस्टम ठीक है, उसको सपोर्ट करे नताशा का, कोई बात नहीं, लेकिन एक सपोर्टर ऊपर भी बैठा हुआ है जिसकी कुदरत से और जिसके फ़ैसलों से कोई शायद बच ना सके। वकील कहते हैं जी नताशा ज़हनी मरीज़ा है और डॉक्टर ने भी कहा है नताशा ज़हनी मरीज़ा है, इनको आराम करने दिया जाए, उनको एक ऐसा मर्ज़ है कि दूसरे दिन को याद भी नहीं रहता कि कल क्या हुआ था। ऐसी मरीज़ा आप खुद सोचें कि वो किसी कंपनी की बोर्ड के मेंबर्स की मीटिंग अटेंड कर सकती है। ऐसी मरीज़ा आप खुद समझे कि वो कभी ऐसा कुछ कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वही रवायती तफ्तीश है, वही रवायती तरीके हैं जो हम पहले भी देखते हैं। लाहौर के केस में भी देखे, डॉक्टर शाहिद सदीक़ के बेटे के मामले में वो पुलिस की एफिशिएंसी ज़रूर देखी हमने, लेकिन वो मामला भी चल रहा है। लेकिन ये जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ये सोशल इशू है, मैं इसके लिए दिल से मैं आवाज़ उठाई है मैंने। मेरे जो लाखों व्यूअर्स हैं उन तक ये आवाज़ जाएगी यकीनन, और हम चाहेंगे कि सिविल सोसाइटी चाहेगी कि ये जो 2 बाप बेटी
عمران عارف اور اس کی بیٹی کو مار دیا گیا ہے، قتل کیا گیا، بلکہ اس کو انصاف ملے۔ ہم اس بات کو دفن نہیں کرنے والے، چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میرے اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا۔ پولیس کی کیا تفتیش جاری ہو رہی ہے، پولیس کس طرح سے بچائے گی اس کو، نتاشا کو، اور کیا کیا حرکات و مرکات ہوں گے، میں وہ لے کر آپ کے سامنے ہوں گا۔ آج کے لیے، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔